سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بجلی گیس ناپانی تاجروں کی وزیر اعلیٰ سے شکایات۔ مراد علی شاہ نے تاجروں کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ توانائی، امن و امان، انفراسٹرکچر، ٹرانسپورٹ کی بہتری کے لیے کمیٹیاں قائم۔ صوبائی وزراء کمیٹیوں کے سربراہ، میئر کراچی اور صنعتکار بھی شامل۔ کمشنر آفس میں قائم ڈیسک پانی، ڈرینیج اور تجاوزات کے مسائل حل کرے گا۔ خصوصی اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پولیس، کمشنر کراچی کی شرکت۔ اختیار بیگ، عارف حبیب، زبیر موتی والا، شبیر دیوان نے تاجروں کی نمائندگی کی۔ عاطف اکرام شیخ، جاوید بلوانی، حسن بخشی، احمد عظیم الوی، جنید نقی، انور عظیم کی بھی شرکت۔ اور ناظرین، کراچی کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ پانی کے بقایا جات یکمشت جمع کروائیں، 35% رعایت پائیں۔ واٹر کارپوریشن نے خصوصی رعایتی پالیسی میں 3 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ 6 مہینے میں ادائیگی پر 25%، 9 ماہ میں ادائیگی پر 20% رعایت۔ 1 سال میں بقایا جات جمع کروانے والے کو 15% رعایت ملے گی۔ رعایتی پالیسی کا بنیادی مقصد شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی کابینہ کے بعد سندھ اسمبلی میں بھی سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ جیالے وزیر اعلیٰ ایف بی آر سے ناراض ہیں، وفاق سے بھی اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ۔ بولے ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے، ملک کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایف بی آر کی کارکردگی ٹھیک نہیں، اس لیے یہ ٹیکس سندھ وصول کرے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ کابینہ کے بعد سندھ اسمبلی میں بھی سندھ ایگریکلچر انکم ٹیکس بل 2025 متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عاجز جمالی۔ صوبے میں زرعی آمدنی پر 10% تک ٹیکس نافذ کرنے کا بل متفقہ طور پر منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے ایف بی آر کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کر دیا۔ عید انتھونی کی زیر صدارت سندھ اسمبلی اجلاس میں وزیر قانون ضیاء الحسن لنجار نے زرعی آمدنی ٹیکس نافذ کرنے کا بل پیش کیا۔ 1% سے 10% تک ایگریکلچر انکم ٹیکس رواں سال جنوری سے نافذ العمل ہوگا۔ Under Rule 256 of Rules of Procedure, that I may be allowed to move the clause with collectively as there is no amendment in the Government Bill number 7 of 2025, the Sindh Agriculture Income Tax Bill 2025. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے وفاق سے اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ کیا اور کہا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی شرط اور ملکی بقا کا مسئلہ ہے۔ ایف بی آر کی کارکردگی ٹھیک نہیں، اس لیے یہ ٹیکس سندھ ریونیو بورڈ وصول کرے گا۔ اجلت میں کیوں کر رہے ہیں آپ کو بتا دیا، اجلت میں نہیں کر رہے، 7-8 مہینے ہم ان سے بات کرتے رہے۔ اب انہوں نے سیدھا یہ کہا ہے کہ جی اگر اس وقت آپ نے پاس نہیں کیا، اگلے 2-4 دنوں میں، تو آئی ایم ایف کی آپ کی ٹیم آئے گی نہیں، ہم ڈیفالٹ پہ چلے جائیں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اعتراض کے باوجود پاکستان کی خاطر ٹیکس نافذ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بات پاکستان کی ہو، اگر اس سے کل کو پاکستان کو نقصان پہنچے، ٹھیک ہے، ہم اپنے اوپر بوجھ بھر کے بھی، اپنے کندھوں پر بوجھ بڑھا کے بھی ہم نے ہمیشہ پاکستان کے لیے فیصلے کیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی بولے بل کمیٹی کے سپرد کیا جاتا تو بحث کی جاتی، البتہ ہم زراعت پر ٹیکس کے حامی ہیں۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں چلی جاتی تو زیادہ بہتر انداز سے ہو جاتا۔ 2-3 مختصر سی چیز جو مجھے اس دوران دیکھنے میں ملی وہ یہ کہ ایس آر بی کلیکٹ کرے گا، ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ تھرو ایس آر بی ہوگی۔ بھئی ایس آر بی آلریڈی اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا، 60 سے 70% سے زائد جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پاتا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ ذمہ داری بھی لگا دی اگر ایس آر بی پر، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ایس آر بی سے نہ لیجئے، مگر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کیجئے۔ یہ میرا اوبیسلی اسی ٹائم پہ ہی انپٹ دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو یہ بل پاس ہو جانا اور چیزیں ہو جانی ہیں۔ ایوان نے شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ڈیموکریسی اور ایم ایچ پنور انسٹیٹیوٹ کے بل بھی منظور کر لیے۔ ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس منگل کی دوپہر تک ملتوی کر دیا۔ عاجز جمالی، کراچی۔ آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لیاقت آباد میں متعدد کم عمر ڈرائیورز کو چالان کر کے رکشے اور موٹر سائیکلیں ضبط کر لی گئیں۔ رپورٹ کریں گے سلمان سلیم۔
اب कम उम्र ड्राइवर्स को बख्शा नहीं जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने डंडा उठा लिया। भारी जुर्माने भी कर लख्ताबाद 10 नंबर पर ट्रैफिक पुलिस अफसर ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की। 9 सीटर रिक्शे को जब्त कर लिया। डीएसपी ट्रैफिक वसीम ने बताया कि कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जबकि सड़क पर मौजूद इनके स्टॉप्स को भी क्लियर किया जा रहा है। बेसिकली ये इतने सालों से यहाँ पर हैं जो कि पीछे के रिहायशी हैं इन इलाकों के, और वहाँ पतली गलियाँ वहाँ वो ले जा नहीं सकते, तो वो यहाँ पर खड़े करते हैं। और किसी से मैंने पूछा तो कहा 10 साल से हैं, कोई 15 साल से है। तो एसीएम साहब जो है उन्होंने कोशिश की थी कि कोई ग्राउंड जो है इनको दे दिया जाए। जब्त किए गए रिक्शे के ड्राइवर का कहना है कि ये हमारा रूट है और रोजाना इसी रूट पर रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा किसका है? मेरा। लाइन के पैसे नहीं देते? वो तो अड्डे वाले लेते हैं, हमारा तो 430 रुपए। ट्रैफिक वाले वैसे नहीं रोकते हैं? ट्रैफिक वाले वैसे हमारे को नहीं रोकते, कोई भी नहीं रोकता। बच्चे बैठ जाते तो उनको रोक लेते, हमारे को कभी नहीं रोका। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक का दबाव ट्रैफिक पुलिस की नाकिस कारकर्दगी के बाइस होता है। 9 सीटर रिक्शा से रिश्वत वसूली करके इन्हें चलने की इजाजत दे दी जाती है। ट्रैफिक वाली जितनी भी चौकियां यहाँ पर, इन सबके भत्ते बने हुए हैं। एक ट्रैफिक वाला आता है, वो उसको 50 रुपए दे देता है, वो हंसता है, बोलता है, वो चला जाता है। अगर हमारा ये निज़ाम सही हो जाए तो ये हमारे मसले मसाइल नहीं है ट्रैफिक के, यूं चुटकियों में हल हो जाए। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि मोटरसाइकिलों और रिक्शों की तादाद दिन ब दिन बढ़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। कैमरामैन अजलान के साथ सलमान सलीम, सिटी 21। आपको बताएं कि ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर कम उम्र नौजवान गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है। सेशन अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का ट्रैफिक सेक्शन जमशेद क्वार्टर पर छापा मारकर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया। अपडेट करें इस खबर से मुताल्लिक ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम पर कम उम्र नौजवान गैर कानूनी हिरासत में रखने का ये मामला है और सेशन अदालत के हुक्म पर जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिफ अली अब्बासी का ट्रैफिक सेक्शन जमशेद क्वार्टर पर छापा मारकर मुबैना तौर पर गैर कानूनी हिरासत में नौजवान को बाजियाब करवा लिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, कस्टम हुकाम को 45 कस्टम एजेंट्स के लाइसेंस मंसूख करना भारी पड़ गया। कस्टम एजेंट्स की जानिब से फैसला वापस ना लेने तक काम बंद करने की धमकी दे दी गई, जिससे मुल्क की दरामद और बरामद को बड़े नुकसान का खदशा बढ़ गया है। रिपोर्ट करेंगे अयाज राना। फेसलेस सिस्टम को नाकाम करने की कोशिश, कस्टम ऑफिसर के खिलाफ बड़ा एक्शन। गुड्स डिक्लेरेशन में हेर फेर में मुलव्विस अफसर समेत 3 कस्टम एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज, जबकि केस को जवाज बनाकर 45 कस्टम एजेंट के लाइसेंस भी मंसूख कर दिए गए। मामले पर तमाम एजेंट सरापाए एहतिजाज बन गए और कस्टम हाउस के बाहर एहतिजाज रिकॉर्ड करवाया। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट एसोसिएशन के चेयरमैन सैफुल्लाह खान बोले, चीफ कलेक्टर जुनूबी से मुलाकात की और कस्टम अफसरान की बेज़ाब्तियों से भी आगाह किया। कुछ लोगों के गुनाहों की सजा तमाम एजेंट्स को नहीं दी जा सकती। हमारे डेलीगेशन में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी मौजूद था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद था और उसके अलावा कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन भी मौजूद थी। हमने उनसे ये कहा कि भाई हमारे लोगों ने जाके किसी से रब्ता नहीं किया, आपके आदमी ने ब्लैकमेल करके पैसे लिए, ये पैसे जो हैं ये भत्ते के पैसे हैं। अगर इन जो 45 आदमियों की आप GDO को चेक कर लें, अगर सारी की सारी रिलीज GDO है और किसी में भी शॉर्ट ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू है तो हम जिम्मेदार है। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट एसोसिएशन अरशद खुर्शीद का कहना है कि हम फेसलेस सिस्टम को कामयाब करना चाहते हैं। कस्टम हुकाम की तनख्वाहें कम हैं, जिसकी वजह से करप्शन करने पर मजबूर हैं। सर देखिए, बात मेरे ख्याल में सैफुल्लाह साहब ने भी यही बोली है कि हड़ताल का तो कुछ नहीं है, लेकिन जो काम डिस्टर्ब हो रहा है इससे डिलेज आएंगी। डिलेज से लाजमी बात है हुकूमत को करोड़ों का नुकसान होगा और यहाँ पे जो लोग जमा हो रहे हैं, काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट किस्म का जो है मामला हुआ है कि किसी ने पैसे दिए हैं, किसी ने मांगे हैं, उसके ऊपर 45 लोगों के लाइसेंस बंद कर दिए गए हैं। ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स ने मामला हल ना होने की सूरत में काम बंद करने की धमकी भी दे दी। कैमरामैन दानियल के साथ अयाज राना, सिटी 21। उधर मलिर साले मोहम्मद गोट में नादरा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह कहते हैं उनके हल्के के अवाम का दरीना मुतालबा था जो पूरा हो गया है। रोजाना 60 अफराद रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद रहमानी। मलिर के बासियों के लिए आसानी की नई राह, साले मोहम्मद गोड में नादरा सेंटर का इफ्तिताह हो गया। मलिर साले मोहम्मद गोड में नादरा सेंटर का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीकुल्लाह ने किया।
जदीद सहूलियात से आरास्ता मरकज शनाख्ती दस्तावेजात की तमाम खदमात फराहम करेगा। आगा रफीकुल्लाह ने हल्के में नादरा सेंटर के क़याम पर शुक्रिया अदा किया। बेहद खुशी और मुसरत हो रही है कि मेरे साथ मेरे MPA और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजा अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं कि ये हमारी इलेक्शन में हमारे लोगों की डिमांड थी, जिसको मैंने चेयरमैन नादरा साहब से रिक्वेस्ट की। उन्होंने इसको एक्सेप्ट करते हुए DG साहब और तारिक बलोच साहब जो मेरे टाउन चेयरमैन हैं, उनकी मुशावरत से एक बेहतरीन सेंटर तैयार हुआ और मेरे इलाके के लोग इंशाअल्लाह ताला इससे फैसिलिटेट होंगे। DG नादरा सिंध एहतिशाम शाहिद ने कहा कि रोजाना 60 अफराद शनाख्ती कार्ड के असूल के लिए रिजू कर सकेंगे। ये तकरीबन 60 से 70 लोगों को रोजाना फैसिलिटेट करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैठने की भी काफ़ी गुंजाइश है। वेटिंग एरिया हमने ख़ास तौर पे इसलिए डिज़ाइन किया है ताकि ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़े अफराद को कोई तकलीफ ना हो और आराम से एक एयर कंडीशन माहौल के अंदर बैठ के अपना कार्ड प्रोसेस करवा सकें। रुकन सूबाई असम्बली राजा रज़ाक बोले कि नादरा सेंटर से स्वाले मोहम्मद गोट, शीदी गोट, भैंस कॉलोनी, अब्दुल्ला गोट और मोहल्ले का इलाकों के अवाम मुस्तफीद होंगे। मेरे ख्याल में शॉर्टेस्ट टाइम में ये नादरा सेंटर हमारा बिल्कुल मुख्तसर 1 महीने के अंदर टोटल सेंटर कायम हुआ। इससे हमारा UC पूरा ये जो है साले मोहम्मद गोट, फिर इसके सराउंडिंग में जामकंडो, फिर चौकुंडी, रजाकाबाद, ये पूरी जो राउंड है उसमें हमारे हजारों लोग इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। स्वाले मोहम्मद गोड में कायम नादरा सेंटर 2 विंडो काउंटर पर मुश्तमिल है, जिसमें 60 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। कैमरामैन कमर अब्दी के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। कुछ बात करेंगे मुल्की मईशत की, तो मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है। जनवरी में महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई है और 110 माह की कम तरीन सतह 2.4% तक आ गई, जो दिसंबर 2024 में 4.1% थी। रिपोर्ट करेंगे अशरफ खान। महंगाई का जोर टूटने लगा, मुल्की मईशत अपने कदमों पर खड़ी होने लगी। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 9 साल की कमतरीन सतह तक गिर गई। इदारा शुमारियात पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक रवां बरस जनवरी में महंगाई की शरह अक्टूबर 2015 की कमतरीन सतह 2.40% रही। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 110 माह की कमतरीन सतह तक गिर गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4.1% रही थी। रवां माली साल 7 माह में महंगाई की औसत शरह 6.6% रही, जबकि गुज़िश्ता माली साल 7 माह में औसत शरह 24.70% थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि जनवरी में महंगाई की शरह में कमी की अहम वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक से पहले ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए हैं। मार्केटों में चीनी 150 से 155 रुपए किलो तक दस्तयाब है, लेकिन गली मोहल्लों की दुकानों पर 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी है, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई है। रिपोर्ट करेंगे बसीम इफ्तिखार। महंगाई का जहर चीनी की मिठास कम करने लगा। रमजान की तैयारियां भी मुश्किल हो गयीं। चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। मार्केट में चीनी 150 से 155 रुपए किलो दस्तयाब है, जबकि गली मोहल्लों की दुकानों में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदार चीनी महंगी होने की वजह मिल मालिकान को करार दे रहे हैं। भाई ये बड़े मिल ओनर्स की वजह है, और दूसरा कोई कहता है गन्ने की शॉर्टेज है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इसमें हमारे जैसे दुकानदारों का कोई रद्द अमल नहीं है रेट बढ़ाने में, ना कम करने में, ये सब ऊपर से होता है। महंगाई के असरात से यूटिलिटी स्टोर्स भी महफूज ना रह सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 5 रुपए किलो महंगी हो गई। फी किलो कीमत 140 से बढ़कर 145 रुपए हो गई। चीनी का 5 किलो का थैला 700 से बढ़कर 725, 3 किलो का थैला 420 से बढ़कर 435 और 2 किलो के थैला 280 से बढ़कर 290 रुपए किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगी चीनी होने से शहरी परेशान हो गए। रमजान करीब आ रहा है, वैसे रेट बढ़ाते जा रहे हैं। मार्केट में वैसे रेट कम है और यूटिलिटीज पे चीनी रेट बढ़ा दी गए, 5 रुपये इजाफा कर दिया है। कमी के बजाय इजाफा करते जा रहे हैं, रमजान की वजह से ये रेट तो आवाम के तो गरीब आदमी क्या हाथ से पूरी करेगा जी। और इसी वजह से पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को क्या कह रहे, रेट बढ़ाती जा रही है। रमजानुल मुबारक से कबल ही चीनी की कीमतों में इजाफा महंगाई के नए तूफान को दस्तक दे रहा है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि नेशनल हाईवे लिंक रोड पर 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम हुआ है। कार और सुजुकी में तसादुम से एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 6 जख्मी हो गए, जबकि एक बच्चा जाँ बहक भी हुआ है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में सुजुकी का ड्राइवर भी जख्मी हुआ,
जिसे जिला अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार खानदान शालतीफ टाउन से कोठरी जा रहा था। पुलिस ने दोनों गाड़ियों को तहवील में लेकर ज़ाब्ते की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। और नाजरीन, सिंध भर में रवा साल की पहली 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में किया है। डिस्ट्रिक्ट साउथ में डेप्यूटी DHO साउथ डॉक्टर आशिक हुसैन ने मुहिम का आगाज किया। इस हवाले से उनका क्या कहना था, आइए सुनवाते हैं। को पता है कि आज से जो है ना पोलियो कैंपेन 3 तारीख से स्टार्ट हो गया है और ये 9 तारीख तक चलेगा। आप लोगों को पता है कि 70 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं पिछले साल, ठीक है। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें कि वो पोलियो वैक्सीन की तरफ आएँ और लगवाएं। ये ना करें कि हमारे जो लोग हैं, हम लोग सब विज़िट करते हैं डोर टू डोर और लोग मना कर देते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी आप लोग चले जाएँ। आप लोगों को पता है कि हम लोग कितनी एफ़र्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स में समेत हमारी पूरी टीम होती है, हमारे DHO साहब होते हैं, हमारे डॉक्टर राजकुमार, फिर डॉक्टर आशिक हुसैन शाह, ये लोग सब मौजूद होते हैं। फील्ड्स में हम लोग जाते हैं, फिर भी हमें बहुत दफ़ा जो है पेरेंट्स मना कर देते हैं। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें मना ना किया जाए, हमें रिफ्यूज़ल ना दिया जाए। हमारी बहुत कोशिश होती है कि आप लोग लगवाएं, ठीक है, इसको पिएँ, ताकि केसेस जो हैं जैसे आपको पता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं, ताकि केसेस कम हो सकें। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स प्लीज़ मना ना करें नेक्स्ट टाइम। आपको बताएं कि 2 हफ्ते गुजर गए हैं। क़यामाबाद में अलमदीना ज्वेलर्स शॉप से 80 लाख रुपए की चोरी का मुअम्मा ताहाल हल ना हो सका। पुलिस अब तक मुल्ज़िमान को पकड़ने में नाकाम दिखाई देती है। ताजिर असलम परवेज़ ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और ज़ेवरात की बरामदगी का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मुबश्शिर हुसैन। अलमदीना शॉप में 20 जनवरी को होने वाली वारदात में लाखों रुपए के तलाई जेवरात चोरी हुए। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। ताजिर असलम परवेज़ का कहना है कि पुलिस अब तक मुल्ज़िमान को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। पुलिस सिर्फ झूठी तसल्लियां दे रही है कि अगरचे पुलिस चाहती तो 24 घंटे के अंदर भी इनको टेस्ट कर सकती थी चोर कहाँ पे। ये इसने एक चोरी नहीं की और भी 19 तारीख को किसी और जगह पे भी की। इनके पास पुलिस वालों के पास वो फोटोज भी मौजूद हैं। और जब हमारी चोरी हुई है उन्होंने हमारे को वो तसल्ली दी थी कि इंशाअल्लाह ताला हम जल्द से जल्द इनको गिरफ़्तार करेंगे, मगर अभी तक वो गिरफ़्तार भी नहीं हुए। हमारे से भी रब्ता किसी पुलिस वाले ने नहीं किया। ताजिर असलम परवेज़ ने कहा कि पुलिस और आला अफसरान मामले पर नोटिस लें और मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। असलम परवेज़ ने पुलिस से फौरी तौर पर चोरों को गिरफ्तार करके चोरी होने वाले जेवरात और सोना बरामद करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ मुबश्शिर हुसैन, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रेती बजरी माफिया के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया गया। 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी ने मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है, जबकि रेती बजरी से भरे ट्रक भी तहवील में ले लिए गए। अपडेट करें अपने नाजरीन को, रेती बजरी माफिया के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया गया। 2.5 नंबर कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब से 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कोरंगी की जानिब से वाक़े का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है और रेती बजरी से भरे ट्रक्स भी तहवील में ले लिए गए हैं।